Okay, so first of all, let us quickly recall what we have studied about basis for a topology. है ना? So just look at this definition which is given here. If X is a set, a basis for a topology on X is a collection script B of subsets of X. है ना? कोई भी कलेक्शन, ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पे स्क्रिप्ट बी जो है वो स्क्रिप्ट टी का ही सबसेट हो, सिंपली है कलेक्शन लिखा हुआ है. पहला रिजल्ट देखें. But every member of this script B is subset of X. So it will be called as basis if for each X belonging to this set, there is at least one basis element from this collection, script B के members को मैं simply B से denote कर रहा हूँ. और second देखें, if X belongs to the intersection of two basis elements B1 and B2, so whenever there is a common element belonging to two basis elements B1 and B2, then there must exist B3 from the same collection which is contained into B1 intersection B2. So this is the basic, this is the requirement for any collection to be a basis for some topology, है ना? Basis for a topology on X. X पे कोई ये किसी topology के लिए कोई collection basis कब होगा? तो हमने इसके भी examples देखे थे और and also see earlier we have studied that whenever there is a topology on any set, then we will assume every member of topology to be an open set. एक तो हमने वो definition देखा. दूसरा definition open set का हम देखते हैं in the terms of basis. In the terms of basis. So how to show that when we will say that that a subset U of X, actually this definition is very important and I am going to use it everywhere. A subset U of X is said to be open in X. Open in X means this U is member of script T. देखो लिखा है ना? This U is member of the topology. If for each X in U, if for every X in U, there is at least one basis element from this script B such that X belongs to B and B is contained into U. तो थ्रू आउट जो ओपन सेट का डेफिनेशन है, किसी सबसेट को हम ओपन तब कहेंगे, सी एनी सबसेट, वी हैव स्टडीड अर्लियर इन टोपोलॉजी दैट एनी सबसेट ऑफ X may or may not be open. If it is open, so either use this definition that it must be members of script T, I mean the topology given on that set, or in terms of basis you need to apply this definition that for every X belonging to U there is a base, at least one basis element B from script B such that X belongs to B and B is contained into U. तो U अगर ओपन है तो उसके हर एलिमेंट के राउंड कम से कम एक बेसिस एलिमेंट मिले such that X belongs to B and B is contained into U. तो ये हमने देख लिया था और इसका पर्टिकुलर केस भी मैंने बता दिया था कि अगर मेट्रिक स्पेस में देखो तो भी ऐसा होता है. मेट्रिक स्पेस में भी जैसे हमने R2 पे करके ज्योमेट्री देखी थी, है ना? इन बेसिस मेंबर्स को अगर मैं ओपन बॉल से रिप्लेस कर दूं तो सिमिलर सेम चीज है. तो वहां पे भी जो टोपोलॉजी होती है वो आप देखोगे यहाँ जनरेट करने का सेंस है कि उनके यूनियन से जनरेट करना. तो लेकिन उस डेफिनेशन पे भी मैं बाद में आऊंगा. अभी सिंपली बेसिस का पहले डेफिनेशन देखें. और हमने ये देखा कि कलेक्शन ऑफ ऑल सर्कुलर रीजन्स, बेसिकली दिस इज गोइंग टू फॉर्म द बेसिस फॉर द टोपोलॉजी ऑन R2 पे जो टोपोलॉजी है, collection of all open sets, है ना, generated by this type. ये आप याद होगा D1, D2 और D infinity metric आपने पढ़ा था, उसमें क्या नाम है, metric space में. And there we have, with the help of those metrics, we have basically those are the open balls under those metric. ठीक है, और उनके यूनियन से क्या बनाया था, ओपन सेट, एंड कलेक्शन ऑफ ऑल दोस ओपन सेट फॉर्म्स अ टोपोलॉजी ऑन R2. लेकिन अब प्रॉब्लम ये है ना कि वहां तो ठीक है, मेट्रिक पे हम डिस्टेंस फंक्शन और उसका रोल से हम बॉल जनरेट करते हैं, लेकिन ऐसा भी आप सिंपली R2 पे ये भी कह सकते हो कलेक्शन ऑफ ऑल ओपन सेट्स, क्योंकि इन जनरल हम मेट्रिक टोपोलॉजिकल स्पेस में मेट्रिक की बात नहीं करते, तो हमें अपने डेफिनेशन को कहीं ना कहीं ओपन सेट के रोल से विदाउट द हेल्प ऑफ मेट्रिक लिखना होगा. So this is the why reason that you will find nowhere the concept of metric is there, because our set X is equipped with only topology, and topology is simply collection of open sets, है ना. एक बार टोपोलॉजी बना लिया तो इसके मेंबर्स क्या कहलाएंगे, ओपन सेट. तो कहीं भी आपको वो अलग बात है कि जब पर्टिकुलर केस की बात करेंगे, आई मीन क्योंकि मेट्रिक से भी टोपोलॉजी जनरेट होती, सो देयर वी विल actually in R2 also the topology, standard topology in R2 is generated by the standard metric. Usual metric से generate हो जाता है,
तो यहाँ पे तो उसका पर्टिकुलर केस आप इन ओपन बेसिस मेंबर्स को आप ओपन बॉल से रिप्लेस कर दो या ओपन सेट को ओपन बॉल से रिप्लेस कर दो, तो आपको सारी चीजें पैरेलल मिल जाएगी। बट इन जनरल इन आर्बिट्ररी टोपोलॉजिकल स्पेस वी विल अवॉइड talking with the help of distance function. So we have seen that collection of all circular regions, that is the interior of a circles, is going to form basis. Geometrical approach देखा था कि कोई भी point space का ले, I mean just think it on R2. So you can always find open discs, open disk containing that point, and I can do it for every x belonging to, I can do this for every x belonging to x. ये हो गया. And whenever there is x common to b1 intersection b2, suppose there are two x is common to two basis member b1 b2, then I can always have another circular region, open circular region containing this one shown here by b3, which is common to b1 intersection b2, which is contained into b1 intersection b2. तो अब लेकिन यहाँ पे अगर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करो तो देखो, एक तो ये था कि b1 b2, b1 और ये जो b2 है, जैसे यहाँ पे इसी आप R2 पे पहले इसी एग्जांपल को देखो तो b1 is again, b1 is a this open circular region is a member of this basis, b2 is also member of the basis, but b1 intersection b2 may or may not be member of the basis. ये चीज क्लियर हुई, क्योंकि देखो अगर इनका इंटरसेक्शन लोगे तो ये कॉमन पोर्शन हुआ, और ये कॉमन पोर्शन जरूरी नहीं सर्कुलर हो, ये इंटरसेक्शन पोर्शन जो आया ये जरूरी नहीं सर्कुलर हो। तो ये थोड़ा सा एक आइडियाज रखो कि क्या दो बेसिस मेंबर्स का इंटरसेक्शन ऑलवेज अगेन बेसिस मेंबर होगा, तो ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इफ देयर इंटरसेक्शन इज एम्प्टी, if their intersection is non-empty, so you can see here that it may or may not be again a basis member. I mean b1 intersection b2 may not be a basis member. There are two different questions, whether intersection of two basis member will be a basis member again, and whether intersection of two basis member will be an open set again. मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? Yes sir. तो इन दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस है, देखो इन दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस है। b1 b2 अभी मैं शो करूंगा कि बेसिकली बेसिस मेंबर्स ऑलवेज ओपन सेट्स होते हैं, और देखो जैसे b1 बेसिस मेंबर है, b2 बेसिस मेंबर है, तो इनका इंटरसेक्शन वो जो इनका इंटरसेक्शन जो आया वो ऑलवेज ओपन सेट होगा, बट इट नीड नॉट बी अ बेसिस मेंबर। वो बेसिस मेंबर जरूरी, क्योंकि जैसे बेसिस मेंबर यहाँ सर्कुलर रीजन था, यहाँ देखो इंटरसेक्शन इज सर्कुलर जरूरी नहीं है, सो क्लियरली इट रिजेक्ट्स that b1 intersection b2 is always a basis member, but b1 intersection b2 is always an open set, क्योंकि open set का ये definition है कि अगर u open है, so for every x belonging to u there must exist b from script b such that x belongs to b and b is contained into u. तो ये definition देखो प्रॉपर्टी सेकंड से आ जाएगा, जैसे b1 intersection b2 open है कि नहीं, this means for every x belonging to b1 intersection b2 there exists b3, तो एक मिल गया b3 ना, so by definition b1 intersection b2 is open, but b1 intersection b2 is again a basis member, it may or may not be true. ये पॉइंट क्लियर हुआ आप लोगों को? Yes sir. Yes sir. फर्क है, दोनों को एक नहीं है। आप देखेंगे, देखोगे कुछ टोपोलॉजीज में क्या होगा, उसका जो बेसिस होगा उसमें हो सकते हैं बेसिस मेंबर्स का इंटरसेक्शन बेसिस मेंबर अगेन हो, और कुछ में नहीं हो, तो ये डिपेंड करता है कैसे कौन सी टोपोलॉजी, बट इन जनरल इट इज नॉट ट्रू दैट इंटरसेक्शन ऑफ टू बेसिस मेंबर इज अ बेसिस मेंबर। अच्छा, एक यहां से भी सोच सकते हो। अच्छा एक बात बताओ, b3 अगर b1 इंटरसेक्शन b2 में है, सो कैन आई से फ्रॉम हियर दैट b3 इज कंटेन्ड इनटू b1 एज वेल एज b3 इज कंटेन्ड इनटू b2? यस सर। इंटरसेक्शन की बेसिक प्रॉपर्टी कह सकता हूं कि नहीं? Yes sir. Yes sir. तो अगर Yes, जैसे sir. आपसे पूछा जाए कि सर आपने ऐसा तो कहीं मेंशन नहीं किया कि b1 ओपन है b2 ओपन है, तो अगर नहीं भी किया तो यहां से आप डिड्यूस कर सकते हो। मान लो मैं कहूँ कि फॉर एवरी x बिलोंगिंग टू b1 देयर एग्जिस्ट b3 such that x belongs to b3 and b3 is contained to b1. Similarly b2 will be a basic open set. Why? Because for every x belonging to b2 there exists b3 by the property second such that x belongs to b3 and b3 is contained into b2. तो यहां से ये क्लियर हो गया कि अगर ये बेसिस एलिमेंट will be always open set.
एक्चुअली मैंने स्टार्टिंग सिंपली सेट से किया, एक सेट से कलेक्शन लिया, लेकिन प्रॉपर्टी 2 से देखो अगर आप डिड्यूस करो तो वो आ जाएगा कि वो बेसिकली बेसिस मेंबर्स आर आल्सो ओपन सेट, आई मीन दे आर आल्सो मेंबर ऑफ द टोपोलॉजी। प्रॉपर्टी सेकंड से आप सोचो, देखो आपको घुमा फिरा के ये डेफिनेशन यूज करना, सबसे यूजफुल डेफिनेशन यही है कि आप किसी सेट को ओपन कब कहोगे। इस डेफिनेशन को रीड करो ना, ये जो 3 लाइन लिखा हुआ है इसको रीड करो, इसी में सारा आंसर है। इसको रीड करो और फिर ये प्रॉपर्टी सेकंड उठाओ, आपको यहीं से मिल जाएगा आंसर। यहां से प्रूफ हो गया कि एवरी बेसिस मेंबर इज बाय प्रॉपर्टी सेकंड इज आल्सो एन ओपन सेट, क्योंकि ओपन सेट होने के लिए भाई यू अगर ओपन सेट है तो आप यहाँ B1 को U1 कह दो और B2 को U2 कह दो, तो U1 को ओपन सेट होने के लिए क्या चाहिए, उसके हर एलिमेंट के अराउंड एक बेसिस मेंबर मिलना चाहिए जो उसे कंटेन करे, खुद इसमें कंटेंट हो, तो वो तो हो गया ना इस वाली प्रॉपर्टी से। So remember, B1 is itself a base open set, B2 is also an open set. In fact, intersection of two basis member need not be a basis member, but intersection of two basis member will always be an open set by the property second, क्योंकि ये कंडीशन ट्रू हो गया कि जब भी कोई x हो ना, फॉर ईच x, जब भी कोई x हो U में, तो एक कम से कम बेसिस में स्क्रिप्ट B से एक एलिमेंट मिलना चाहिए जो उसे कंटेन करे, खुद इसमें कंटेंट हो U में। So that is true here. So this is the reason why. But we have started from just simply a collection. हमने सिर्फ एक कलेक्शन से स्टार्ट किया, लेकिन प्रॉपर्टी 2 से क्या डिड्यूस किया कि बेसिस मेंबर्स आर आल्सो ओपन सेट, मेंबर्स ऑफ टोपोलॉजी, क्योंकि वो ओपन है ना, और कोई भी सेट ओपन होगा तो टोपोलॉजी का मेंबर होगा बाय डेफिनेशन ऑफ टोपोलॉजी। टोपोलॉजी में तो और भी मेंबर हो सकते हैं बेसिस के मेंबर्स के अलावा। चलो, अच्छा, दूसरा हमने ये देखा कि बेसिस मेंबर यूनिक हो जरूरी नहीं है, वो अभी आगे आएगा कैसे जनरेट करते हैं टोपोलॉजी। लेकिन देखो R2 के लिए ये कलेक्शन ऑफ ऑल सर्कुलर रीजन्स भी बेसिस है, और R2 के लिए ये कलेक्शन ऑफ ऑल रेक्टेंगुलर रीजन्स भी बेसिस है। रेक्टेंगुलर रीजन याद है वहां मेट्रिक में कैसे करते थे, किससे जनरेट, डी इंफिनिटी मेट्रिक से, जो सुप मेट्रिक होता था। R2 पे जैसे इसको रेड्यूस, R2 पे इसको करो प्लेन पे, तो आप वहां पे डी इंफिनिटी मेट्रिक करते थे ना, मैक्सिमम ऑफ मॉड एक्स मॉड वाई, जैसे यूनिट बॉल बनाते थे, मैक्स मेट्रिक जो लेते थे। मान लो यूनिट बॉल बनाना और B01 मेट्रिक स्पेस के लेक्चर में देख लेना, मैं कई बार बता चुका हूँ ये सब चीजें, आप पीछे आप पढ़ के भी, आप बार मैं इन चीजों को रिवाइज करूंगा तो फिर कोर्स कैसे आगे बढ़ेगा। मैंने एक हिंट दे दिया, ये आपका काम है, और आप लोगों को अकाउंट में मैंने लेक्चर भी शेयर किया था इसमें कैसे, जैसे यूनिट बॉल बनाना विद सेंटर 0 रेडियस 1, तो आप देखोगे रेक्टेंगुलर रीजन्स आते हैं, रेक्टेंगुलर रीजन्स, इसमें ओपन बॉल्स मैक्स मेट्रिक के रिस्पेक्ट में, या जिसको डी इंफिनिटी मेट्रिक भी कहते हैं, उसके रिस्पेक्ट में क्या होता है, रेक्टेंगुलर रीजन्स, और इन बॉल्स के, इन ओपन रेक्टेंगल्स के यूनियन से ओपन सेट जनरेट होगा, और उन सारे ओपन सेट्स का कलेक्शन क्या होता था, टोपोलॉजी जनरेटेड बाय डी इंफिनिटी मेट्रिक, टोपोलॉजी जनरेटेड बाय डी इंफिनिटी मेट्रिक। या आप सिंपली कह दो कि प्लेन में अगर मैं ऑल रेक्टेंगुलर रीजन्स का, दैट इज इंटीरियर ऑफ रेक्टेंगल्स का कलेक्शन ले लूं, whose sides are parallel to x and y axis, so that is also going to form a basis, satisfy the condition of basis। और भी आप ले सकते हो, यहाँ पे पर्टिकुलर ये स्पेसिफिक लिया हुआ है, so this is also going to form a basis member, and later on just there is one more result, I will show that both are going to generate the same topology। इसका मतलब ओपन सेट आपका कोई अगर R2 पे कोई टोपोलॉजी है, स्टैंडर्ड टोपोलॉजी है, तो उसके मेंबर रेक्टेंगुलर रीजन से भी जनरेट हो सकते हैं और सर्कुलर रीजन से भी जनरेट हो सकते हैं, है ना। सो बेसिस मेंबर नीड नॉट बी यूनिक, बेसिस मेंबर नीड नॉट बी यूनिक। और यहाँ पे हम देखेंगे ना, जनरेट करने का सेंस यूनियन से जनरेट होना, वो लीनियर अलजेब्रा वाला नहीं कि लीनियर कॉम्बिनेशन लिख दिया, यहाँ तो वेक्टर स्पेस ऑपरेशन हो जरूरी थोड़ी ना है, हमने तो सिर्फ एक सेट पे क्या लिया, एक टोपोलॉजी ली है, हमने ये तो कहा नहीं कि ये सेट हमेशा वेक्टर स्पेस होगा, कि यहाँ वेक्टर स्पेस ऑपरेशन है, हो भी सकते नहीं भी। यहाँ इस बुक में जब भी आप यूनियन का सेंस, कलेक्शन ऑफ स्क्रिप्ट जनरेटेड बाय द बेसिस मींस बेसिस मेंबर के यूनियन से टोपोलॉजी के मेंबर जनरेट होंगे, ठीक है। तो आपको लीनियर अलजेब्रा में जो पढ़ा है और यहाँ पे दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट है, कंफ्यूज नहीं होंगे, नाम टर्मिनोलॉजी सेम ही यूज किया गया है लेकिन दोनों अलग है। कोई डाउट है यहाँ तक किसी का? No. अच्छा, हमने ये देखा था कि अगर x पे मैं डिस्क्रीट टोपोलॉजी ले लूं, किसी भी सेट पे डिस्क्रीट टोपोलॉजी, सो कलेक्शन ऑफ वन पॉइंट सबसेट्स ऑफ x इज अ बेसिस फॉर डिस्क्रीट टोपोलॉजी। कलेक्शन ऑफ वन पॉइंट सेट, आई मीन कलेक्शन ऑफ ऑल सिंगलेटन्स
वेयर एक्स बिलोंगिंग टू एक्स, ये अगर लो तो ये बेसिस बनाएगा। ये तो आप हमेशा दे सकते हो, कोई भी अगर स्पेस दे रखा है तो हर एलिमेंट के राउंड सिंगलेटन एक्स, क्योंकि डिस्क्रीट टोपोलॉजी क्या होता है, पावर सेट होता है, पावर सेट में हर एक सबसेट ओपन होते हैं। सॉरी मैं इसको टाउडी लिख रहा हूँ, ये बेसिस होगा, सिंपली बेसिस, ये बेसिस होगा, इनके यूनियन से टोटल वो जनरेट हो जाएगा। आई मीन टाउडी टोपोलॉजी जनरेटेड बाय डिस्क्रीट, हाँ टोपोलॉजी जनरेटेड बाय दिस बेसिस कह लो, यहाँ डी नोटेशन देता हूँ ताकि याद रहे डिस्क्रीट की मैं बात कर रहा हूँ। तो इनके एलिमेंट्स के मेंबर से, जैसे मान लो आपको 1 2 जनरेट करना हो तो सिंगलेटन 1 यूनियन सिंगलेटन 2 ये भी आ जाएगा, सिंगलेटन तो सारे है ही यहाँ पे, इनके यूनियन से सब जनरेट हो जाएगा। क्वेश्चन है कि 5 और x कैसे आएगा, तो x भी जनरेट हो जाएगा पर 5 कैसे आएगा, तो आप कुछ बुक्स में उसको एज्यूम कर लेते हैं, लेकिन आप चाहो ना तो इस वाले डेफिनेशन से शो कर सकते हो। ये जो डेफिनेशन, मैं आता हूं उस टॉपिक पे, ये जो डेफिनेशन है ना कि सेट को ओपन कब दिखाएंगे, जो अगर बेसिस के फॉर, वो जो डेफिनेशन है कहां गया ये डेफिनेशन, any set u is set, any subset of u is said to be open if for every x belonging to u there is at least one basis element। तो इस डेफिनेशन से आप फाई को भी दिखा सकते हो, ओपन होगा, इसका मेंबर होगा, क्योंकि फाई क्या है यहां पे देखो, अगर फाई है, फाई को ओपन दिखाना है तो आप कोई एलिमेंट बताओ, अगर जैसे ये सेट ओपन नहीं होता तो कम से कम एक ऐसा एक्स मिलना चाहिए इस सेट से जिसके राउंड आप बेसिस एलिमेंट ना ढूंढ सको, तो डिस्कार्ड करने के लिए आपको एक बेसिस एक मेंबर चाहिए ना, लेकिन फाइव में तो कोई मेंबर ही नहीं है, सो दिस डेफिनेशन इज वैक्यूअसली ट्रू। इसीलिए लिखते नहीं है, मतलब लेकिन आपको लॉजिक तो मालूम होना चाहिए क्यों ऐसा लिख रहे हैं। तो ये उसका सिर्फ अभी बेसिस हुआ, और इन बेसिस के यूनियन से, बेसिस मेंबर के आर्बिट्री यूनियन से, मतलब एक बार एक का लो, दो का लो, आई मीन इट मे बी काउंटेबल अनकाउंटेबल यूनियन, उन सब का कलेक्शन से क्या हो जाएगा, टोपोलॉजी के मेंबर्स आ जाएंगे। तो हम उसको भी आगे देखेंगे। हाँ यहाँ पे बल्कि ये लिखा भी हुआ है, देखो, let us check now that the collection script T generated by the basis script B is in fact a topology on X। आपको सिंपली एक X के सबसेट्स का कलेक्शन हम लेके चले, और अगर वो बेसिस की दोनों कंडीशन फुलफिल करती है तो उनसे जनरेटेड टोपोलॉजी में वो सारे मेंबर होंगे, मतलब 5 भी होगा, X भी होगा, और जो टोपोलॉजी में तीनों एक्सियम फुलफिल करेंगे। सो दैट इज व्हाट रिटन हियर, लेट अस चेक नाउ दैट द कलेक्शन स्क्रिप्ट T जनरेटेड बाय द बेसिस इज इन फैक्ट अ टोपोलॉजी ऑन X। व्हाई? देखो एक्चुअल होता क्या, आपको क्या प्रूफ करना है, ये स्क्रिप्ट T में कैसे मेंबर है, इस स्क्रिप्ट T में कैसे मेंबर है, इसमें ऐसे सबसेट्स हैं सेट के जिसपे ये कंडीशन फुलफिल हो, जो ओपन हो, ऐसे सबसेट से जो ओपन है। ओपन होने के लिए बेसिस के टर्म में कौन सा डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन। ये क्या कहता है, फॉर each x belonging to u there is a basis element b from script b such that x belongs to b and b is contained into u। तो अगर ये फुलफिल कर गया तो वो ओपन होगा। तो आप यहां पे लिखो बेसिकली टोपोलॉजी इज कलेक्शन ऑफ ऑल दो सबसेट ऑफ x such that for every x belonging to x, है ना, सॉरी, for every x belonging to u there exists basis member from the script b such that such that x belongs to b and b is contained into u। ये सिंपली एक एलिमेंट है और ये कलेक्शन है, स्क्रिप्ट भी लिखो तो कलेक्शन डिनोट करेगा। तो ये प्रूफ करना है आपको कि तो अब ये बताओ, टोपोलॉजी में तो बाय डिफॉल्ट पहला ही कंडीशन होता है कि 5 और x हमेशा होते हैं, तो इस डेफिनेशन से आप ये कैसे दिखाओगे कि 5 बिलोंग्स टू स्क्रिप्ट T? हालांकि यहां लिखा हुआ है, देखो, अगर let us check now that the collection script T generated by the basis B is in fact a topology on X if U is the empty set, it satisfies the definition of defining condition of openness vacuously। तो फाई अगर ओपन सेट है, देखो यहाँ U है, ये U इसका कब मेंबर होगा, U कब स्क्रिप्ट T का मेंबर होगा, U कब स्क्रिप्ट T का मेंबर होगा, if U is member of script T, I mean U is open, that is U is open, यूज ओपन। तो आपको बार बार एक डेफिनेशन यूज करना है कि फॉर एवरी एक्स बिलोंगिंग टू यू देयर एग्जिस्ट बेसिस मेंबर फ्रॉम एटलीस्ट वन बेसिस मेंबर, देयर एग्जिस्ट मींस एटलीस्ट वन फ्रॉम स्क्रिप्ट बी सच दैट एक्स बिलोंग्स टू बी एंड बी इज कंटेन्ड इनटू यू। यू हैव टू फॉलो दिस डेफिनेशन एवरी टाइम व्हेनेवर ये हर एक एक्स के राउंड
इफ यू इज ओपन तो उसके हर एक मेंबर के अराउंड कम से कम एक बेसिस मेंबर मिलना चाहिए जो एक्स को कंटेन करे और इसमें कंटेंट हो, आई मीन कंप्लीटली लाइज इन यू। यहाँ पे ये नोटेशन इसके लिए यूज करते हैं, बता चुका हूं कांग्रेस में ये इसके लिए नोटेशन होता है। तो अब यहाँ पे क्लियरली ट्रू है। देखो फाइव का क्यों मेंबर होगा, फाइव का मेंबर इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे फाइव रख के सोचो, यहाँ फाइव है, मैं हिंट दे देता हूँ, वो इसमें सब लिखा हुआ है, आप समझने पे ज्यादा फोकस करो, जहां कुछ अलग से लिखना होगा मैं बता दूंगा। फाइव क्यों ओपन है, अगर फाइव ओपन है, फाइव ओपन नहीं है तो कम से कम एक ऐसा एलिमेंट बताओ जिसके अराउंड में बेसिस मेंबर ना ढूंढ सकूं, लेकिन फाइव में तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, सो दिस डेफिनेशन इज वैक्यूअसली ट्रू। आगे समझ में? Yes, sir. Yes, sir. किसी को डाउट है तो आपको ये डेफिनेशन फॉलो करना है, क्योंकि बेसिस के टर्म में ओपन सेट का डेफिनेशन यही कहता है। और देखो ये बिल्कुल पैरेलल, जैसे आप मैट्रिक में पढ़ के आए, मैट्रिक में क्या करते थे, कोई सेट ओपन कब होता था, जब उसके हर पॉइंट के अराउंड में एक बॉल ढूंढ लूं। Yes, sir. लेकिन हम तो यहाँ आर्बिट्री टोपोलॉजी में बात कर रहे हैं ना, तो आर्बिट्री टोपोलॉजिकल इस पे जरूरी थोड़ा ना मैट्रिक से जनरेटेड हो, तो हम मैट्रिक में हम डिस्टेंस फंक्शन का रोल नहीं, अनलेस ये दिया होगा आपका मैट्रिक इस पे मेट्राइजेबल है, मतलब कोई मैट्रिक है जो इसे जनरेट कर रहा हो तो वो एक अलग बात है, हम अभी बाद में सब पढ़ेंगे कि कब कोई मैट्रिक इस पे मेट्राइजेबल होगा, यूरेशंस थ्योरम वगैरह। अभी सिंपली मैंने कहीं भी मैट्रिक का मैंने रोल नहीं बोला। और फिर जब आप उसको पढ़ लो तो उस रिजल्ट को डिड्यूस करके देखो क्या उससे मैट्रिक के सारे रिजल्ट्स मिल रहे हैं, तो आप ये यहाँ पे हम रिप्लेस कर देंगे बेसिस मेंबर को बॉल से, तो आपको सारे रिजल्ट मैट्रिक के मिल जाएंगे। वाई एक्स बिलोंग्स टू टी, एनीवन? वाई एक्स बिलोंग्स टू टी? सर सिंगलटन का यूनियन ले लेंगे तो एक्स नहीं, लेकिन एक मिनट देखो, यही प्रॉब्लम। देखो अब आप बोले तो बिल्कुल सही, सिंगलेटन मैंने क्या है, आप बोला कि टोपोलॉजी डिस्क्रीट है। सिंगलेटन ओपन कब होता है, जब टोपोलॉजी डिस्क्रीट है। इवन स्टैंडर्ड टोपोलॉजी आप अगर आर पे अगर आप स्टैंडर्ड टोपोलॉजी लो तो वहां सिंगलेटन ओपन नहीं होता। चलो बहुत अच्छा पॉइंट आपने बोला। तो तभी देखो जब बातें, जो भी आपके आई मीन जो भी आप सोच रहे हो ना, जब वो चीजें बोलोगे तब मैं बताऊं कहाँ क्या गलत होती है, यहीं से इंप्रूवमेंट होता है। अब आप चुप रहोगे क्लास में तो फिर, क्योंकि अभी स्टार्टिंग है, लर्निंग है। सिंगलेटन कहाँ ओपन होते हैं, पावर सेट में ना, डिस्क्रीट टोपोलॉजी में, वहां पे कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट होता है। लेकिन अगर आप याद रखो तो स्टैंडर्ड टोपोलॉजी पे, अभी मैं खैर मैंने यहां नहीं दिया, लेकिन अगर आप मैट्रिक में याद करो तो मैट्रिक में क्या किया था, मैट्रिक में बॉल्स क्या होते थे, ओपन इंटरवल्स। और सिंगलेटन मैट्रिक में अगर आप जाओ तो मैट्रिक में सिंगलेटन आर पे अगर यूजुअल मैट्रिक लो तो सिंगलेटन उसके रिस्पेक्ट में ओपन नहीं था, लेकिन सिंगलेटन आर में अंडर डिस्क्रीट मैट्रिक ओपन होता है, आर में अंडर डिस्क्रीट मैट्रिक ओपन होता है। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे जब आएंगे, जब टोपोलॉजी पे आएंगे, आर पे अगर टोपोलॉजी लो, डिस्क्रीट टोपोलॉजी, तो वहां तो हर एक सबसेट ओपन होगा डिस्क्रीट, तो क्योंकि पावर से तो वहां सिंगलेटन भी ओपन हो जाएंगे। लेकिन जब टोपोलॉजी मेंशन नहीं है तो आप ये नहीं कहेंगे सिंगलेटन से जनरेट होगा। वो कब होता है, डिस्क्रीट में, वहां वो स्मॉलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं तो उनके यूनियन से हर एक जनरेट हो जाएगा। बट वी विल नॉट से हियर सिंगलेटन। यहां सिंपली ये है कि देखो आपको क्या दे रखा है, बेसिस। अब आपको सिंपली बेसिस का मेंबर यूज करना है। बेसिस का डेफिनेशन क्या कहता है, बेसिस का डेफिनेशन क्या कहता है, टोपोलॉजी यहां जनरेटेड बाय बेसिस की बात कर रहे हैं ना, तो एक बार बेसिस है तो पहला ही कंडीशन क्या कहता है कि आप कोई भी एक्स लो, उसके अराउंड कम से कम एक बेसिस एलिमेंट होगा जो उसे कंटेन करे, और कोई भी बेसिस एलिमेंट होगा तो सबसेट तो एक्स का ही होगा। इज इट? Yes, sir. Yes, sir. भाई कोई बेसिस एलिमेंट भी तो एक्स का सबसेट है, सो दिस इज ट्रू बाय द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ बेसिस। और यही क्या है कंडीशन, ओपन होने का भी कंडीशन यही है। किसी सेट को ओपन, यहां यू रख के देखो, यू को एक्स रख लो, तो यू कब ओपन होगा, जब कब उसके हर एक एक्स के अराउंड ये एटलीस्ट एक बेसिस मिले। तो ये एटलीस्ट एक बेसिस मिले, ये कहां से गारंटी आपको मिलता है, फ्रॉम द फर्स्ट एक्सियोम ऑफ बेसिस। Yes, sir. अभी भी डाउट है किसी को? आएगी चीजें समझ में। तो हम ये नहीं कहेंगे सिंगलेटन जनरेट होगा, वो सिंगलेटन वगैरह जब हम पर्टिकुलर टोपोलॉजी जब डिस्क्रीट कहेंगे वहां की बात अलग है। यहाँ मैं आर्बिट्री टोपोलॉजिकल स्पेस से बात, मुझे नहीं मालूम टोपोलॉजी कौन सी, लेकिन मैं ये कंडीशन से कह दूंगा कि कोई भी टोपोलॉजी हो, एक्स एंड फाइव आर ऑलवेज मेंबर्स ऑफ द टोपोलॉजी, बिकॉज दे विल सेटिस्फाई दिस कंडीशन। एक्स इससे हो गया और फाइव इसी से हो जाए, क्योंकि ऐसा एक्स नहीं मिलेगा जहां ये फेल हो। ठीक है, इस किताब का वर्ड बाय वर्ड पढ़ा करें, बहुत अच्छी बुक है, बहुत शॉर्ट में और कंक्रीट दे रखा है।
तो ये हो गया गिवन एक्स। देखो यहाँ पे वही चीज लिखी हुई है, मैं मार्क कर देता हूँ, आप लोग इसको देख ले। Let us check now that collection script is generated by the basis B is in fact a topology on X. If U is the empty set, it satisfies the defining condition of openness vacuously. ये तो लिख देते हैं, लेकिन आप वेरीफाई करके देख लिया करें। Likewise, X is in script T. Since for each X in X, there is some basis element B containing X and is contained in X. ये प्रॉपर्टी 1 से, बेसिस के पहली प्रॉपर्टी से, क्योंकि यहाँ आपकी टोपोलॉजी किससे जनरेट हो रही है? बेसिस से। तो ये उससे प्रूफ हो गया। अब आपको क्या शो करना है कि इस स्क्रिप्ट टी के मेंबर, इस स्क्रिप्ट टी में अगर मैं ऐसे यू अल्फा ले लूं, वेयर अल्फा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट, तो उनका यूनियन भी इसके अंदर हो। उनका यूनियन भी इसके अंदर होने क्या मतलब? उनका यूनियन भी ओपन हो। तो ओपन में कौन सी डेफिनेशन यूज करनी है? बेसिस वाली। तो यहां उसका यूनियन हो, यूनियन ऑफ यू अल्फाज। तो आप जो भी एक्स लेके चलोगे इस यूनियन से, तो यहाँ पे आपको क्या दिखाना है? कम से कम एक बेसिस मेंबर मिल जाए जो इसमें इसको कंटेन करो और खुद यूनियन में कंटेन्ड हो। तो ये आपका अगला टारगेट है। सो लेट अस कंसीडर फैमिली ऑफ ओपन सेट। इसमें कितने मेंबर्स हैं यू अल्फा में? स्क्रिप्ट ये यू अल्फा में कितने मेंबर हैं? बताएं भैया, कितने मेंबर लिखे हुए हैं यहाँ पे? अनकाउंटेबल है इंडेक्स सेट में। हाँ, डिपेंडिंग ऑन इंडेक्स सेट इट कैन बी फाइनाइट इनफाइनाइट, है ना। ये एक एलिमेंट नहीं, ये कलेक्शन ऑफ ओपन सेट्स है यू अल्फा, कलेक्शन ऑफ ओपन। और हमें क्या दिखाना है कि उनका यूनियन भी स्क्रिप्ट टी का मेंबर है। और कौन सा डेफिनेशन यूज करना है? ये कंटेनमेंट वाला। तो ये कैसे प्रूफ होगा? सर इसमें से एक पॉइंट एक्स मान लें कि यू अल्फा में बिलोंग कर रहा है। वेरी गुड। देखो तो वहां पे एक अल्फा कोई एग्जिस्ट करेगा जिसमें यू अल्फा एक्स बिलोंग कर रहा होगा। शो दैट u इज इक्वल टू यूनियन ऑफ u अल्फा, where अल्फा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट बिलोंग्स टू स्क्रिप्ट t। ये शो करना है। मींस यूनियन ऑफ u अल्फा फॉर एवरी x बिलोंगिंग टू, that is for every x belonging to union of u alpha, you need to think of here a basis member b from script b such that it is contained into union of u alpha। ये आपका काम है। तो अब हम क्या यूज करेंगे जिससे ये बेसिस क्लेम हो जाए? बेसिस मेंबर कैसे क्लेम करोगे? एक मिनट, तलहा जकरिया। यस सर। हाँ, कैसे ये बेसिस मेंबर कैसे क्लेम करेंगे जकरिया? देखो, अब हर एक जगह सेट थ्योरी का बेसिक यूज हो रहा है, आप सेट थ्योरी रिवाइज ही आप लोग नहीं कर रहे हो। जुनेद, यस सर। कैसे सर, क्लेम करेंगे? सर इसमें एक एक्स मान लेंगे कि यूनियन ऑफ यू अल्फा में बिलोंग कर रहा है। ठीक है। फिर वो अगर यूनियन में बिलोंग कर रहा है तो कोई एक अल्फा ऐसा यूजे होगा यूनियन का जिसमें डेफिनेशन यूज कर लेंगे। हाँ, यस यूजे में बिलोंग करेगा। क्योंकि ये यूजे में एक एक्स बिलोंग कर रहा है तो वहां पे एक बी बेसिस एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा होगा जिसमें एक्स बिलोंग कर रहा है। एक मिनट जुनेद, क्यों करेगा? क्योंकि ईच ऑफ द यू अल्फा इज ओपन। हमने क्या लिया? वो कलेक्शन ओपन सेट का लिया ना, तो वहां से क्लेम होगा ये। यस सर, ये जो बिल्कुल ठीक है, स्क्रिप्ट का बिल्कुल सही। मेंबर लिया है यू अल्फा। आपने यू अल्फा क्या लिया? ओपन। और ओपन होने Yes, का sir. मतलब इस डेफिनेशन को यूज करना है आपको। यस ओपन होने क्या मतलब? ये जो डेफिनेशन, ये वाला जो 3 लाइन यहाँ लिखा था ना, ये मैंने इसमें लिख दिया है। आपको इतना हिंट दे दिया, आप दोबारा वीडियो देखना, आपको समझ में आ जाएगा। अब आप छोटे क्लास में बच्चे नहीं, मैं एक एक लाइन लिख के नोट्स बना के दूं। हिंट मेन बुक में बहुत अच्छा लिखा हुआ है। टाइम बचेगा, डिस्कशन पे ज्यादा फोकस करें। यस सर। किताब पढ़ने की आदत डालें। जब इतनी अच्छी किताबें, तो जरूरी नोट्स, ये सब गलत तरीका होता है। वहां जहाँ पे ठीक है, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक अलग बात है, लेकिन कुछ अलग एक्स्ट्रा होगा तो मैं वहां नोट्स दे दूंगा। बाकी आप जो बुक में लिखा एक एक लाइन वेरीफाई करने की कोशिश करें, यही सही तरीका होता है। इस तरह किताब पढ़ने की आदत डालेंगे तो आपको बाद में भी काम आएगा। नोट्स में बहुत लिमिटेड हो जाएगा और फिर आप में क्रिएटिविटी नहीं है। गलतियां होगी, होने दो, फिर दोबारा करेक्शन करेंगे, क्या जाता है। आप क्यों ये प्रेशर ले रहे हो कि मुझसे गलतियां हो जाएगी और ये होगी? जो आपको आता है बोल। जैसे अभी देखो, किसी बच्चे ने बिल्कुल सही बोला है कि सिंगलेटन होगा, तो अब सिंगलेटन होगा नहीं होगा तभी तो वेरीफाई करेंगे। तो अगर डिस्क्रीट टोपोलॉजी है तो हम सिंगलेटन की बात करेंगे, वरना जरूरी नहीं कि सिंगलेटन ऑलवेज ओपन हो। ठीक है ना। और यहाँ पे हम जनरल टोपोलॉजी की बात कर रहे हैं।
ये यहाँ पे यूनियन ऑफ यू अल्फा हो गया। एक प्रूफ सही से समझ लो ना तो 8-10 प्रूफ तो वैसे ही हो जाते हैं। अब मैं 50 प्रूफ भी करा दूं ना तो थ्योरम के, तब भी आपको हो सकती चीजें न क्लियर हो, लेकिन एक दो थ्योरम में प्रूफ में सब सेट थ्योरी की बेसिक रिकॉल हो जाती है, और जो आइडियाज हैं कैसे आपको आंसर प्रेजेंट करना है वो चीज समझ में आ जाएगी। बाकी यूट्यूब पे बहुत से लेक्चर्स पढ़े हैं, ऐसा थोड़े ना है, लेकिन क्लास वाइज और स्टूडेंट वाइज सबके डाउट अलग अलग होते हैं, तो आप लाइव क्लास में पार्टिसिपेट करना सीखो, तभी आप सीखोगे। चलिए आगे देखते हैं। सो दिस आई होप दिस वन इज क्लियर टू एवरीवन। फॉर एवरी x belonging, Yes, sir. so x belonging to union of u alpha means this implies x belongs to, just use the definition of union, u alpha for some alpha, for some यहां लिखना ये जरूरी, for some alpha, and since each u alpha is open, and since each u alpha is open, so obviously this for some this particular alpha से alpha j और जो भी notation वो भी open होगा, and thus by definition there exists basis member which contains x and which is contained into u alpha. तो अगर x ये बेस इसमें हो गया, so and u each of the u alpha is contained to union of u alpha, तो ये बेसिस इसमें भी तो चला गया हर एक x के राउंड, so this Yes, implies that their union of u alpha is member of script T. Now what about a finite intersection? ये आप कैसे शो करोगे कि finite intersection भी इसका मेंबर होगा? ये इंडक्शन से पहले दो के लिए सॉल्व कर लो, u1 u2 के लिए कर लो। सपोज u1 and u2 are open, that is they are member of script T. We need to show that u1 intersection u2 also belongs to script T. तो आपको क्या दिखाना है कि u1 intersection u2 से अगर आप कोई भी x उठाते हो, है ना, तो क्या मिलना चाहिए? There exists basis member from script B such that x belongs to B and B is contained to u1 intersection u2. तो ये दे रखा है, ये दे रखा है, आपको इस पे सोचना ये कहां से आएगा, कौन सी प्रॉपर्टी गारंटी देती है? बेसिस के में दो पॉइंट थे ना, उसमें प्रॉपर्टी सेकंड देखो, वहां से मिल जाएगा। देखो u1 ओपन है, देखो सिंपली यहाँ u1 ओपन है, u1 ओपन होने का मतलब कि फॉर एवरी x बिलोंगिंग टू u1 देयर एग्जिस्ट बेसिस मेंबर से b1 belonging to script B such that x belongs to b1 and b1 is contained into u1. Similarly u2 ओपन होने का क्या मतलब, एक कम से कम, सॉरी ये स्क्रिप्ट में लिख दे रहा हूं, सिंपली b2 लिखो, एक बेसिस मेंबर b2 मिलना चाहिए हर एक x आई मीन x के राउंड, जो b2 जो x को कंटेंट को खुद इसमें कंटेंट हो, और ये इसका मतलब x b1 में भी है और x b2 में भी है, सो दिस इंप्लाइज दैट x बिलोंग्स टू b1 इंटरसेक्शन b2. X is in B1, X is in B2 because U1 and U2 Yes, are yes. open. So X belongs to B1 intersection B2. अब प्रॉपर्टी सेकंड बेसिस का क्या कहता है कि जब भी X B1 intersection B2 में हो तो क्या मिलेगा? तीसरा बेसिस मिलेगा सर फ्रॉम से, हाँ, तो बस प्रॉपर्टी भाई प्रॉपर्टी 2 ऑफ बेसिस या रेफरेंस दोगे, प्रॉपर्टी 2 ऑफ बेसिस, डेफिनेशन ऑफ बेसिस which is contained into B1 intersection B2. लेकिन आपका टारगेट क्या था? आपका टारगेट ये था कि U1 intersection U2 में वो कंटेंट हो। तो एक बात बताओ, B1 U1 में, B2 U2 में, तो B1 intersection B2 क्या नहीं होगा U1 intersection U2 में? Yes, sir. ये जो B ढूंढना था वो B3, मैंने नाम यहाँ B3 दे दिया, आगे समझ में? Yes, sir. Yes, sir. That is what written here. B3 is contained into U1 intersection U2. तो दो के लिए शो कर दिया, अब इंडक्शन यूज कर लो, अब इन दो को एक एज्यूम कर लो, U1 इंटरसेक्शन U2 को एक ले लो और फिर U2 U3 के साथ यूज कर लो। इन जनरल सपोज करो n-1 के लिए ट्रू है और n के लिए शो कर दो, इसकी n-1 के लिए इसको एक कंसीडर करके और एक ये लेके, तो ये इंडक्शन के लिए हो। तो आपको लिखोगे फाइनली वी शो बाय इंडक्शन दैट एनी फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ स्क्रिप्ट T इज इन स्क्रिप्ट T। ठीक है, तो ये आप खुद से कर लो, इस तरह की चीजें आप जानते हो। आगे समझ में आपको? Yes, sir. Yes, sir. तो आपने एक चीज नोटिस की होगी यहाँ पे कि हमने जो स्टार्टिंग की वो कहां से की है, सिंपली एक्स का एक सबसेट लिया था,
एक्स के सबसेट्स का कलेक्शन लिया था। मैंने स्टार्टिंग में ये नहीं कहा था कि वो ओपन है कि नहीं, लेकिन प्रॉपर्टी 2 से क्या निकल के आया? कि वो सारे ओपन होंगे इसके हाँ, पास। सारे ओपन। ये जो थोड़ा इस तरह से सोचे उसको, क्या कैसे एनालाइज करेंगे चीजों को, ठीक है ना। ओपन निकल के आया। स्टार्टिंग में सिर्फ सेट का एक सबसेट का कलेक्शन लेके चले थे हम, और बाद में ये प्रूफ किया था। देखो यहाँ पे, देखो आप नोटिस करो, एक्स कोई सेट है, a basis for a topology on X is a collection script B of subsets of X satisfying these two condition। लेकिन इन दो कंडीशन से ये हमने किया कि, और ओपन होने के लिए डेफिनेशन है बेसिस के टर्म में, तो बाद में यूज यहां से प्रॉपर्टी सेकंड से ये डिड्यूस, मेंबर भी ओपन होंगे। ओपन होने मतलब स्क्रिप्ट के मेंबर होंगे टोपोलॉजी जो उस सेट पे है। चलो, अब दूसरा इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो आपको करना है वो ये है। अच्छा, अब अभी तक मैंने हाँ ये प्रूफ करना, हाँ इसका प्रूफ तो मैं पहले स्टार्टिंग में भी आपको करा चुका हूं कि if X is any set, let script B the basis for a topology script T on X, then script T, this topology script T equals the collection of all unions of elements of B। कहने का ये मतलब स्क्रिप्ट T का हर एक मेंबर, आप जो भी स्क्रिप्ट T से मेंबर लो, देखो यहाँ U बिलोंग्स टू स्क्रिप्ट T है, U स्क्रिप्ट T का मेंबर है और स्क्रिप्ट T के मेंबर ओपन होते हैं। तो हर एक ओपन सेट को आप बेसिस एलिमेंट्स के यूनियन में लिख सकते हो, मतलब यूनियन से जनरेट कर सकते हो। दिस इज सिमिलर काइंड ऑफ थिंग व्हिच वी हैव स्टडीड इन मेट्रिक स्पेस। वहां पे अगर आप याद रखो तो कैसे करते थे, हर एक ओपन सेट को क्या लिखते थे, यूनियन ऑफ बॉल्स, ओपन बॉल्स। तो वैसे ही है ये, लेकिन यहाँ पे मेट्रिक की बात नहीं करेंगे क्योंकि मैं आर्बिट्री टोपोलॉजिकल स्पेस में बात कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन इसका पर्टिकुलर केस वो सारे रिजल्ट मेट्रिक के मिल जाएंगे। तो कोई सेट कब ओपन होगा, जब उसके हर एक केस के कॉरस्पॉन्डिंग एटलीस्ट एक बेसिस मेंबर मिले। तो बेसिस से जनरेटेड टोपोलॉजी मतलब टोपोलॉजी का हर मेंबर बेसिस मेंबर के यूनियन से जनरेट हो जाएगा। वो फाइनाइट यूनियन भी हो सकता है, इनफाइनाइट यूनियन भी हो सकता है, इन जनरल आर्बिट्री यूनियन, क्योंकि इनफाइनाइट में भी काउंटेबल अनकाउंटेबल, भाई फाइनाइट सेट तो एम्प्टी सेट तो काउंटेबल होते ही हैं। लेकिन ये सो एक्स बिलोंग्स टू, डिपेंडिंग ऑन यू की कार्डिनलिटी क्या है, ये यूनियन उस पर डिपेंड करेगा। तो कभी भी यहाँ पे ये नहीं लिखेंगे i इक्वल टू 1 टू n या i इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी, इस तरह की चीजें नहीं लिखते। वो तब करते जब सेट काउंटेबल हो। यू के बारे में यह नहीं मालूम हो whether that set is countable or uncountable, so just write x belonging to u or x belongs to, ठीक है ना, डिपेंडिंग ऑन द कार्डिनलिटी ऑफ u। so this lemma states that every open set u in x can be expressed as union of basis elements। एक्चुअल में देखो, अब वो आदत छोड़ दो, फाइनाइट सेट लिख के उस पर मैं एक्सप्लेन करूँ, स्टार्टिंग में दे दिया। अभी 2-4 क्वेश्चन के बाद ना आपको समझ में आने लगेगा, सेट थ्योरी रिवाइज जैसे से होगी। एंड रीड हियर दिस वन, दिस एक्सप्रेशन फॉर यू इज नॉट हाउएवर यूनिक। ये जो यू को आप यूनियन ऑफ बॉल्स लिख रहे हो ना, तो ये जो यूनियन में लिख रही है जरूरी नहीं है। जैसे आप अगर आपने R2 में देखा होगा, R2 पे आप अगर स्टैंडर्ड टोपोलॉजी ले लो, स्टैंडर्ड टोपोलॉजी ले लो, तो स्टैंडर्ड टोपोलॉजी जो होता है ना, इसके मेंबर्स, आई मीन जो ओपन सेट्स होंगे विथ रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड टोपोलॉजी, दैट कैन बी जनरेटेड बाय यूनियन ऑफ रेक्टेंगल्स एंड दैट कैन बी जनरेटेड बाय यूनियन ऑफ सर्कुलर रीजन्स। तो देखो, इवन बेसिस मेंबर भी अलग हो सकते हैं। तो ये जो यूनियन से, ये यू यहाँ सेट है, ओपन सेट, और ये जो मैंने यहाँ यू लिखा ये यूनियन है ना। अब ये बताने की जरूरत नहीं कहाँ ओपन सेट है कहाँ यूनियन है, ये आपको इतना समझ में आता होगा, उम्मीद करता हूँ। तो आप देखो कि इवन तो ये बेसिस मेंबर यूनिक हो जरूरी नहीं है। तो यहाँ से सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आया कि जो हम कि एक से ज्यादा भी बेसिस हो सकते हैं और इवन उनके एलिमेंट्स भी कंप्लीटली डिफरेंट हो सकते हैं। दिस लेमा स्टेट दैट एवरी ओपन सेट इन U in X can be expressed as union of basis elements. This expression for U is not however unique. Thus the use of the term basis in topology differs drastically from its use in linear algebra। देखो लिखी हुई चीज है, तो हम लोग वही बात करेंगे जो यहाँ पे है। where the equation expressing a given vector is a linear combination of basis vectors is unique। देखो लीनियर अलजेब्रा में वहां एक तो पहली बात, वो लीनियर अलजेब्रा का जनरेट करने का सेंस अलग होता है, वहां बेसिस मेंबर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन से जनरेट होता है, तो वहां वेक्टर स्पेस ऑपरेशन भी यूज करते हैं। हमारे यहाँ ऐसा कुछ, हमारे यहाँ जनरेट करने का सेंस यूनियन, यहाँ पे यूनियन होता है, ठीक है ना। इसलिए मैंने इसको हाईलाइट कर दिया, आपको स्टार्टिंग में भी बोला था यूनियन। और यहाँ क्या है, यहाँ जनरेट करने का सेंस लीनियर कॉम्बिनेशन है। तो
तो दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं। यहाँ पे जो बेसिस वेक्टर्स होंगे वो यूनिक होते हैं, है ना, लीनियर अलजेब्रा में। लेकिन यहाँ पे बेसिस वेक्टर यूनिक को जरूरी नहीं, जैसे आपको ये दे दिया R2 पे स्टैंडर्ड टोपोलॉजी यूनियन ऑफ ओपन रेक्टेंगल से भी जनरेट हो जाएगा और ओपन सर्कुलर रीजन से भी, ठीक है। Yes, sir. So we have described in two different ways how to go from a basis to a topology. It generates. Sometimes we need to go in the reverse direction from a topology to a basis generating it. Here is one way of obtaining a basis for a given topology. We shall use it frequently. देखो अभी क्या किया, पहला जो डेफिनेशन हमने यूज किया, जो ये प्रूफ किया, यहाँ पे सिंपली हमने एक सबसेट लिया था, सबसेट का कलेक्शन। ये नहीं कहा था कि वो टोपोलॉजी के, लेकिन बाद में निकल के वही आया। Let X be is a set, a basis for a topology, and X is simply collection script B of subsets satisfying these two condition. कोई भी सबसेट्स का कलेक्शन अगर ये दो कंडीशन फुलफिल करना तो बेसिस होगा। अब तो अभी हमें टोपोलॉजी नहीं मालूम, हमें बेसिस दिया था, बेसिस हमने टोपोलॉजी जनरेट किया। अब अगर मान लो किसी सेट पे आपको टोपोलॉजी दे रखी हो, मान लो किसी सेट पे देखा ना, कभी कभी हमें रिवर्स डायरेक्शन में भी जाने की जरूरत है, जैसे टोपोलॉजी दे रखा और उसके लिए बेसिस ढूंढना है, तो उसके लिए ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस वन इज अ वेरी गुड रिजल्ट। और इसी पे बेस्ड क्वेश्चन नंबर, एक क्वेश्चन एक्सरसाइज में ये दोनों रिलेटेड है। जैसे वो क्वेश्चन पता नहीं इसी वाले में दे रखा है, हाँ ये वाला क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट ए और पार्ट बी, 8 का पार्ट ए और पार्ट बी। ये पहले इसका स्टेटमेंट देख ले, फिर इसका प्रूफ देखेंगे, और उसके बाद अभी फाइनल कोएर्सर पे मैं आया नहीं हूं। फाइनल कोएर्सर के टर्म में दो टोपोलॉजी में कौन फाइनल कौन को कोएर्सर, आई मीन वेदर दे आर कंपेरेबल और नॉट, एंड इन टर्म हाउ टू रिप्रेजेंट देम इन टर्म्स ऑफ बेसिस, हाउ टू कंपेयर देम इन टर्म्स ऑफ बेसिस। क्योंकि अब आपने बेसिस पढ़ लिया, तो हो सकता है किसी सेट पे आपको टोपोलॉजी उस जगह उसका बेसिस लिखा हो। तो अब देखो ये रिजल्ट क्या कहता है। सपोज एक्स बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस, आई मीन एक्स इज इक्विप्ड विद सम टोपोलॉजी स्क्रिप्ट टी। सपोज दैट स्क्रिप्ट सी is collection of open sets of X such that for each open sets, यहाँ पे open word लिख दिया। open word में लिखने का मतलब ये होगा कि स्क्रिप्ट C जो है वो सबसेट हो गया किसका, टोपोलॉजी का, क्योंकि टोपोलॉजी के मेंबर ओपन होते हैं। यहाँ पे कलेक्शन आपने किसका लिया, ओपन सेट्स ऑफ X। यस सर। 13.2 और इसके पहले वाले में डिफरेंस समझ में आया? Yes, sir. वहां पे हम सिंपली सबसेट लेके चल रहे हैं, हमने ये नहीं कहा तो ओपन होगा, ठीक है। Yes, sir. Such that for each open set U of X and each X in U, देखो वही definition repeat, there is an element C of from this script C such that X belongs to C and C is contained to U, then C is a basis for topology। एक तो यहाँ पे आप बताऊं कि बेसिस टोपोलॉजी का यूनिक को जरूरी नहीं है। इनफैक्ट आप देखोगे ना कि हर टोपोलॉजी खुद भी बेसिस होता है, एवरी टोपोलॉजी इज ऑलवेज अ बेसिस। लेकिन मान लो उसका कोई सब कलेक्शन लिया, तो वो सब कलेक्शन क्या बेसिस, आई मीन वेदर दैट सब कलेक्शन इज बेसिस और नॉट, ये क्वेश्चन है। अब आपको टोपोलॉजी दे रखी है, टोपोलॉजी का कोई सब कलेक्शन लिया, स्क्रिप्ट सी, ये मुझसे बन नहीं रहा, थोड़ा ऐसे बना दो स्क्रिप्ट सी। अब सबसेट लिखे मतलब इसका कलेक्शन होगा, ये अंडरस्टूड है, ठीक है। तो किसी टोपोलॉजी के सब कलेक्शन को, आई मीन इन ओपन में से कुछ ओपन सेट्स ले लिया, तो वो बेसिस होगा कि नहीं, ये कैसे क्लेम करेंगे? तो आप क्या काम करो, बहुत आसान डेफिनेशन है। ये जो आपने सब कलेक्शन लिया है ना, सब कलेक्शन, ठीक है, तो आई मीन ये क्लेम करना कि सपोज दैट स्क्रिप्ट सी इज अ कलेक्शन ऑफ ओपन सेट्स ऑफ एक्स, दैट फॉर ईच ओपन सेट यू ऑफ एक्स एंड ईच एक्स इन यू देयर इज एन एलिमेंट सी फ्रॉम स्क्रिप्ट सी सच दैट एक्स बिलोंग्स टू सी एंड सी इज कंटेन्ड टू यू। देखो यू कहां के मेंबर होंगे, एक्स के सबसेट नहीं, एक्स के सबसेट तो होंगे, वेदर यू आर मेंबर ऑफ स्क्रिप्ट टी। यस सर, ऑब्वियसली यू ओपन लेके चल रहे हैं ना, ओपन है, यू तो हमेशा स्क्रिप्ट टी से टोपोलॉजी का मेंबर होगा, और ऑब्वियसली यू तो सबसेट होगा क्योंकि हम इसमें कलेक्शन ही बाय क्या लेते हैं, एक्स के सबसेट कलेक्शन जो ओपन हो, या टोपोलॉजी का एक बार मेंबर हो गया तो वो ओपन हो गया। अब क्लेम ये कि कोई सबसेट, कोई हमने इस स्क्रिप्ट टी का कोई सबसेट लिया, वो कब बेसिस होगा, तो वो बेसिस तब होगा कि अगर आप स्क्रिप्ट टी से जो भी मेंबर उठाओ और इस यू से के हर एक पॉइंट के राउंड
आप इस कलेक्शन से कम एक मेंबर ढूंढ लो जो कि इस ओपन सेट के अंदर कंटेन्ड हो। अगर ऐसा हो गया तो ये कलेक्शन भी क्या होगा, टोपोलॉजी, सॉरी बेसिस फॉर दिस टोपोलॉजी, इस टोपोलॉजी के लिए बेसिस का काम करेगा। तो प्रूफ तो बिल्कुल पैरेलल, जैसे पहला प्रूफ हमने डिस्कस किया, लेकिन थोड़ा सा यहां डिफरेंस है क्योंकि अब आपको ओपन का यूज करना है। अच्छा, आपको हो सकता है ये ना समझ में आया, एक काम करो, इस पहले क्वेश्चन 8 का स्टेटमेंट समझो, उसके बाद आपको समझ में आएगी चीजें। अच्छा, ये टोपोलॉजी डिफरेंट हो गया। अब मैं क्वेश्चन 8A का कह रहा हूं, देखो अभी हम पढ़ेंगे कि आर पे एक्चुअली ना, आर पे जो स्टैंडर्ड टोपोलॉजी होती है, स्टैंडर्ड टोपोलॉजी, उसका बेसिस जो होता है ना, कलेक्शन ऑफ ऑल ओपन इंटरवल्स ए बी वेयर ए बी बिलोंगिंग टू आर, ये बेसिस होगा स्टैंडर्ड टोपोलॉजी। माय डियर, ये बेसिस है, टोपोलॉजी नहीं, बेसिस है। इनके यूनियन से टोपोलॉजी के मेंबर जनरेट होंगे, इनके आर्बिट्री यूनियन से। तो ये बेसिस दे रखा है। अब इस टोपोलॉजी का मैं एक सब कलेक्शन लेता हूं, कलेक्शन ऑफ ऑल ओपन इंटरवल्स वेयर ए एंड बी आर रेशनल। यहां रेशनल वर्ड लगा दिया, यहां ए बी कहां से आ रहे थे, रियल से आ रहे थे। तो क्या ये भी बेसिस होगा? तो अगर ये बेसिस है तो स्टैंडर्ड टोपोलॉजी का के रिस्पेक्ट में कोई भी ओपन सेट उठाओ, हर एक उस ओपन सेट के हर एक पॉइंट के अराउंड यहां से कम एक इंटरवल मिलना चाहिए जिसके एंड पॉइंट रेशनल हो, उस पॉइंट को कंटेन कर रहे हो और खुद इस ओपन सेट में कंटेन्ड हो। तो ये हम प्रॉपर्टी, वो ऑब्वियसली वो डेंसिटी रिजल्ट से आ जाएगा, लेकिन मैं एक हिंट दे रहा हूं कि दिस वन इज आल्सो अ बेसिस दैट जनरेट्स द स्टैंडर्ड टोपोलॉजी, ताकि आपको वो चीज समझ में आ जाए जो उस थ्योरम में है। मैं इसके प्रूफ पे आऊंगा और आपको दोनों में डिफरेंस समझ में आ जाए। अभी कोएर्सर फाइनल पढ़ा दूं, उसके बाद इस पे आऊंगा। तो ये देखो, इसको ये आप लोग खुद से सोच के रखेंगे, मैं नेक्स्ट क्लास में पूछूंगा। इसका प्रूफ हिंट मैंने दे दिया, बिल्कुल पहले वाले प्रूफ के जैसा है, लेकिन अब कंडीशन आपको ये यूज करनी है। शो दैट सी इज अ बेसिस फॉर द टोपोलॉजी ऑफ एक्स। ये रिजल्ट बहुत यूजफुल है, इस पे कंपटीशंस में अक्सर आपको क्वेश्चन मिलेंगे। कितना वक्त बचा है अभी क्लास में? 2 मिनट। यस, 1 मिनट Yes. 45 पे। हाँ, तो चलो इसे करने का टाइम नहीं है इस क्वेश्चन को। 13.2 आप लोग ऐसा काम करेंगे, 13.2 और 8 का फर्स्ट पार्ट दोनों खुद से ट्राई करके रखेंगे, ओके Okay, sir. है ना?